पकड़ के चलते हैं, जब तक वो हाथ में लेके बैठेंगे। returns to normal. In a few days, the nicotine levels in your body decrease, and in about 12 as a smoker, you can get a heart attack anytime. E-cigarettes put you at greater risk of death. Quit tobacco today for health call 1-800-11-356. The one and only all-rounder from the movie. He's absolutely doing a great work in the cinema space, and of course, he's balancing sports analytics as well. He's doing some phenomenal work as an actor at the same time, associated with Mumbai Indians IPL team as well. Amchi Mumbai, ladies and gentlemen. I just want to call on stage the one and only Hari Shankar ji. Can I have a huge round of applause, Mr. Hari Shankar? Thank you so much. There is the dapper man making his way through the stage. Great stuff. Congratulations. Thank you so much, brother. Can we have a bigger round of applause for him, please? The one and only Mr. Hari Shankar. My next introduction is going to be about somebody who just doesn't really need an introduction, because मैंने जब introduce किया था तभी उनका थोड़ा बहुत introduction हो गया था, right? When I talked about Pushpa, so of course goes without saying, I'm talking about the one and only Raj Tirundasu sir. Ladies and gentlemen, brilliant work earlier in Pushpa, and now he's going to be doing some phenomenal work in Katalan as well. जोर से बजनी चाहिए तालियां उनके लिए, please, Mr. Raj, making his way with full swag. Thank you so much. मैं next बुलाना चाहूँगा on stage a very, very, very fine actor. He knows how to do whatever he's been trusted with by the directors and the producers. आप लोगों ने उनका बहुत ही बेहतरीन काम देखा है already in Kill. And of course, all I can say and take it forward from there is that he's literally killing it in Katalan. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Parth Tiwari, please. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ladies and gentlemen. If I can have the biggest round of applause for Parth Tiwari. Thank you so much, Mr. Tiwari. Body का थोड़ा tip हमें भी दे देना, sir. Thank you so much. Thank you so much. And ladies and gentlemen, I have to talk about this man. Truly, in today's current Indian scenario, one of the most talked about villains and antagonists in the country that we have right now, always killing it with whatever role that he's been trusted with. He's known for his physique, but I think more than that, he's known for his great skills as an actor. He was simply phenomenal, as we all know, in Marco, and I think he's only taking that legacy forward over here with Katalan. Ladies and gentlemen, Kabir Duhan Singh ke liye zor se taali, please. The man, the legend, the OG, Kabir Duhan Singh over here, ladies and gentlemen, for all of us. Yes, सीटी आपने जो चालू किया वो सीटी वापस कंटिन्यू कर सकते हो, कबीर सर खुश हो जाएंगे. क्या बात है. Thank you so much. Thank you so much. What a pleasure. Individually आप लोगों ने ताली बजाए, consolidated ताली हो जाए चारों के लिए, please everybody. क्या बात है. Thank you so much. What a brilliant thing. Before I pass it on to my friends and incredible dignitaries from the media, I have certain questions for all of you over here, which I want to actually ask. So, Kabir ji, मैं आपसे चालू करना चाहूँगा. You were truly fantastic in whatever projects that you have played so far. Marco has truly played a brilliant role in that journey of yours as well, right? And you're now continuing it wonderfully with Katalan. We just saw what you have to offer over here. What's been your experience and everything like? First of all, good evening everyone, and thank you for joining us. See, Katalan, let me talk about Cubes, Sharif Bhai. He's like family to me, and this is my second movie with him. He is a great producer, and he gives a open hand to all his directors. आपने मार्को भी देखी है, and it was a massive hit. So when director gives an open hand कि यार go and make a good cinema, I'm stand next to him. So picture अच्छी बनती है. You saw the trailer और film आप लोगों ने देखी है. So production quality देख लो, आप shot taking देख लो, director काम देख लो. It's really good, and like I said, it's a family to me, and many more to come यार. मतलब मुझे अच्छा लगता है अच्छा काम करना. This is my 86th movie in last 10 years, and I'm very grateful क्योंकि यार journey being a हरियाणवी guy, गांव से निकल के साउथ में काम करके now coming to Bollywood, एक खोटा सिक्का चल गया यार. हर हर महादेव यार, खोटा सिक्का चल गया. हर महादेव. and it's just a beginning. अभी तो बॉलीवुड बाकी है यार. शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और बहुत मेहनत करी है यार. 10 साल, 86 मूवीज. मतलब and it's not easy for me यार यहाँ तक आना, आप सबके सामने खड़ा होना यार. और ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलने वाली है यार. So thank you so much. Thank you so much. All I can say is लड़ाई लंबी चलने वाली है सर, लेकिन you have already started in a victorious note, so I'm sure it's only going to get bigger and better. Thank you so much. Touch wood. That's what it is. हर हर महादेव. हर हर महादेव. That is what it is. जिनके
5 का हाथ है और क्या ही चाहिए. मेरे से पूछा जाता है यार who's your manager, who takes care of your work. मतलब हर कोई पूछता है मुझसे, तो मैं बोलता हूँ यार he is my manager Mahadev, so he is taking care of my work nicely. क्या बात है. The best manager one can have indeed. मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा राज जी से. राज जी has a mic. हाँ, perfect. Thank you so much. मैं ये पूछना चाहूँगा कि right in the very introduction itself, as I was talking about Pushpa, right, all the great work that South film industry is doing and leading the way for the rest of the country. You've been a part of that. You're being a part of this right now. You're going to be a part of everything that's happening in the country in the future, touched wood by God's grace. But I just want to understand. Yeah, exactly. Right. Manifestation is the ultimate power. But I want to understand what was the similarity about being a part of this as well as Pushpa, and also how different was Kattalan in terms of a beautiful cinematic experience for you. Pushpa is it's completely a different role for me. Like you guys already saw that film, right? His aggression always on the edge, kind of. But comparatively, that Pushpa role, this Kadalan is much more mature role for me. Yeah, the complete team is different. Telugu industry works different, and Malayalam is also different. But the director Paul Judge, the technical knowledge, whatever he had, is brilliant. एवरी फ्रेम में हम लोग देख सकता है इसका ब्रिलियंस, और टेक्निकल नॉलेज आल्सो बहुत अच्छा है. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दैट गाय इन मलयालम. दिस इज माय फर्स्ट मलयालम फिल्म, आई मीन लाइक डेब्यू फॉर मी इन मलयालम. So I'm very happy with this, and yeah, please watch this movie in theaters and let us know. Thank you so much. I want to tell about director यार. I was the first one in this movie जिसने फिल्म सुनी थी. I was shooting for one of my upcoming Malayalam movies, Suresh Gopi sir, Ottakomban, वो next release है मेरी. So I was shooting for that movie and he came to my location and he narrated me this film. He told me, यार you're the first person, hero ने film नहीं सुनी है, but I want to narrate this film to you. And I said yes. And I've seen his hard work. 110 दिन का shoot था movie में. And day and night धूप है, बरसात हो रही है, नहीं हो रही है, धूप निकल रही है. So मैंने उस बंदे की पॉल जॉर्ज की मेहनत देखी है कि उसने क्या डिलीवर किया है. You have witnessed the film now, you have seen the film. He was one of the very calm and relaxed director. मतलब he speaks very less. वो calm. Whenever I go to him कि सर अच्छा बताओ अभी क्या है क्या नहीं है. He was very particular for the shot. जो shot वो लेने वाला है, he will never compromise in the shots. So very calm, relaxed in the set, and बस calm. और I'm like we are all are very grateful we are part of this film. Yeah, thank you. I think calm में calm निकल गया. मैं वो निकल बोल गया, सकता हूँ. निकल That's गया. what it is. I want to take my next question to Mr. Parth. He has a mic. Yeah, perfect. Thank you so much. I want to understand that जो मैंने introduction में भी कहा आपके लिए, you've killed it in Kill, and now you're going to be killing it in Kattalan as well. What is like your mental state when you do these kind of thrillers and really intriguing roles, because it takes a lot from you within, right, to deliver as per the expectations of the director. So how do you prepare yourself mentally for these kind of intriguing roles? Oh, अच्छा, okay. I talk about my preparation. So I'm a kind of a actor जिसको बहुत सारा information पहले से चाहिए. So I'm always after the director कि सर क्या है मुझे बताओ इसकी past story क्या है. काटालन के साथ भी पॉल के साथ भी same था. On call I think we had 6 calls and I was like कि what is Robbie like. So मेरा preparation is always discussion and more of information जिससे कि मैं character build कर सकूँ. Siddhi in Kill was more raw, rustic. एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो लोग, और वो काफी डिफरेंट कैरेक्टर था. यहाँ पर रॉबी इज रिच, स्टाइलिश, एंड सिटी डजंट टेक्स हिज ओन डिसीजन बट गोज विद द फैमिली, एंड हियर रॉबी इज अपने मन की मर्जी करता है. So that is the main difference in both the characters, and I'm very happy that I got the chance to work in Malayalam cinema because I think Malayalam cinema is the one जो सबसे ज़्यादा risk ले रहा है. At least I really love movies coming out of that industry, and they have come into action, and Mako was a very good example of it, and I hope कि Kaatalan भी आपको अच्छी लगे. So we did our hard work, the team did their work, and I'm very thankful that I'm part of this project. Thank you. Fantastic stuff. I think all we can say is fortune favors the brave. तो अगर मेहनत करते बहादुरी से आगे बढ़ते तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है. So that's exactly what's happening in your case as well. I'm going to move quickly to you, sir. What
what is this balancing of sports analytics, movies, completely different parallels, yet two really really popular things in a beautiful country like India? मुंबई इंडियंस के साथ भी बेहतरीन काम कर रहे हो, मूवीज में भी काम कर रहे हो, क्या बाकी रह गया सर? आप मुझे पहले वो बताओ, व्हाट इज लेफ्ट? गुड इवनिंग एवरीवन। आमची मुंबई आने में बहुत खुश हुआ एंड मुंबई इंडियंस के साथ काम कर रहा था, अभी नहीं। Experience is always there. Yeah, it's always there. No, but we have to be right. Yeah. So I used to work with Mumbai Indians for 3 years, good 3 years, 2013, 2014, 2015. And then, it was a long journey with cricket analytics, but then after a point I decided I need to chase one more passion. This was always been my dream. So I left everything and wanted to pursue this, and that's how I started. This is my third big role movie. I'm very very happy to be part of Katalan, such a great setup. The entire star cast and the entire crew members, they're all they have list of movies to say when they call, but for me it's I have only one or two, pick and choose, but still such a character which was given to me. Paul, I just have to thank the director Paul George sir. He's I don't know, I'm just indebted to him. I have to be, and Sharif sir, the producer. It is tough for any person to believe on a fresher. I'm kind of a fresher, and giving such a big screen space, it's truly a blessing, and I'm very very happy to pursue my cinema career, which is starting in Mumbai. That's where my the entire professional journey has been. So I'm really really happy, and it's a real moment. All I can say is that you have experience of a fresher, but then the talent of somebody really, really experienced. Kabir sir wants to say something. अभी picture बाकी है मेरे दोस्त. So I would like to add one thing for our leading man Anthony Verghese Pepe. We have seen him in Angamali Diaries, Jallikattu, and here it's a very different work. I just want you guys to give a big round of applause to Anthony Pepe. Thank you so much. Thank you so much for all those wonderful pointers as well. Now what I'm going to do is I'm going to be opening up the floor for the media for the Q&A round. So can we have the questions? I'll just request you to please direct to whom your question is to, so that the person knows that he has to answer. Can we have the first question, please? Director during the shoot of this movie? First of all, like I said, I'm very grateful that I'm part of this film. और cast आपके सामने, Perth, Harishankar, Raj, Pepe. This is my first movie with Pepe, and he was damn good. कभी भी मतलब एक होता ना काम चोरी करना शॉट में, वो नहीं करता था कभी. हालांकि इज न्यू जॉनर फॉर हिम. इतना एक्शन उसने पहले कभी नहीं किया है. सो उसने लाइक क्लाइमैक्स आपने देखा है, तो ही वाज वन ऑफ द हार्ड वर्किंग एक्टर्स मैंने पिछले कुछ समय में देखी, जो कास्ट के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके. राज के साथ मेरे काम नहीं था अनफॉर्चुनेट ब्रदर. हरी के साथ कॉम्बिनेशन थी, तुषाला के साथ कॉम्बिनेशन था. सो अच्छी यार मेहनती टीम थी यार. और क्या होता है ना, एक कहावत है, व्हेन यू वर्क विद ऑनेस्टी सो रिजल्ट अच्छा निकलता है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने सबके साथ काम किया और चीज़ अच्छी निकल कर आई. डायरेक्टर का मैंने बोला कि यार it was one of the very hard working directors. मैंने उनका हार्ड वर्क देखा है. I was there for 25 days for this film and sleepless nights. We used to sit together up to 12 o'clock, 1 o'clock. सुबह 6 बजे फिर सेट पर जाना. We used to discuss next morning scenes कि यार क्या करने वाले हैं. And he was like, he was having black coffees at nights and नहीं यार ये ऐसे करना है वैसे करना. मैं कहा सर रिलैक्स यार, हो जाएगा. इतना हो गया तो ये भी हो जाएगा यार. So शरीफ भाई का मैंने बताया आपको कि हम it's like coming back to home. Second movie Marco was massive hit, and finger cross यार, like we made this film with honesty, और जब soul correct होता है तो चीज़ें अच्छी बनती हैं. कन्नड़ा में कब आपको देख सकते हो कन्नड़ा इंडस्ट्री में? यार मैंने पिछले कुछ समय से कन्नड़ा फिल्म साइन नहीं किया, बिकॉज जो मैं फिल्म स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ अभी नॉट अप टू द मार्क. सो यस, मलयालम इज कमिंग 2 films, 3 हिंदी मूवीज आर कमिंग, 1 OTT, 2 OTT सब्जेक्ट आर कमिंग, 2 तमिल फिल्में आ रही हैं. सो आने वाले 5 महीनों में 11 फिल्में रिलीज में मेरी. Thank you so much. Before we move to the next question, just 1 minute. The production house wants that आप लोग खाली set पे मेहनत करो, यहाँ पे नहीं. So what I'm going to do is I'm going to quickly put in the chairs for all of you. बहुत बढ़िया काम किया. Actually, I would tell. Yeah.
so they have ensured that. My question to anybody who wants to take it is that what aspect do you think will surprise audience the most according to you, or all of you can take it? मैम ब्लड एंड स्वेट इज वेरी कॉस्टली, सो हमने ब्लड एंड स्वेट दिया इसमें और ओरिजिनल एलिफेंट्स फाइट्स है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग व्हिच वी शोड, सो बाकी चीज़ें आपने देखी निकल कर आई हैं और जब ब्लड और स्वेट दे देता आपने तो फिर तो उसके बाद आंसर तो मैम मिल ही जाना चाहिए आपको. The first episode we have done in Bangkok with original elephants, Kicha Master. Those elephants are already worked in Ong Bak movie. So with that elephants we worked. That was really scary actually, but yeah, somewhat we have done that. Original fights Yeah. which we shot in Thailand, Bangkok. We have the next question, please. Hello, Kabir sir. Hello. This side. The question is for you. Like, I saw this movie right now. The action, the thriller is wonderful. So, what do you think? Like, when we see a regular thriller action films in cinema, and what makes this apart? Like, what is the difference between them and in this film? यार एक तो मेरा आंसर तो सेम है कि ब्लड एंड स्वेट इज़ वेरी कॉस्टली हमने दिया है इस फिल्म को, और म्यूजिक इज़ रियली गुड. रवि बसरूड आपने देखा है कि KGF, सलार, ड्रैगन इज कमिंग, मार्को में उनका म्यूजिक था, वन ऑफ द की पॉइंट्स. एंड ऑफ कोर्स स्मगलिंग वर्ल्ड है यार, कि हाउ फाइट बिटवीन मारीज वर्ल्ड, इडीज वर्ल्ड एंड पेपेज वर्ल्ड, एक इमोशन के लिए वी आर फाइटिंग फॉर अ रीजन. एक जैसे मेरे बाप का सपना था. कहानी सोल इज करेक्ट, कहानी बहुत अच्छी है, कास्टिंग बहुत अच्छी है फिल्म की, म्यूजिक बहुत अच्छा है, एंड सबने बहुत मेहनत करी है यार. आई एम श्योर आप लोगों को आपको भी पिक्चर अच्छी लगी होगी यार, ये क्वेश्चन निकल कर आया है. So, yes. Hello. सर मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म में हमें मार्को के फिल्म का एक हिंट मिलता है जहाँ पर मार्को के फादर को दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये फिल्म उस यूनिवर्स से कनेक्ट होती है. बट उस फिल्म के एंडिंग में भी आपकी डेथ हो जाती है और इस फिल्म के भी एंडिंग में आपकी डेथ हो जाती है, तो ये कैसे कनेक्ट होगा? क्या करूं यार, बार बार मार देते हैं, फिर प्यार इतना करते हैं, ले वापस ले आते हैं मुझे ये लोग. नहीं, it's not Marco's universe, but of course it's connected somehow to Lord Marco. आपने लास्ट में हिंट देखा है, so मेरे लिए भी, मैं भी जो आपका क्वेश्चन है वो मेरा भी क्वेश्चन है यार, but they love me a lot यार, मुझे बहुत प्यार मिला साउथ से. तो when I heard this film, even I can be part of Lord Marco also, so let's see. Can we move to the next question? Anji. Hello, Kabir sir. Hello bhai. My question is, now today audience are expecting larger than life performance. So can you tell me, do you face any pressure while performing? नहीं यार, I don't feel any pressure. मैं बस I read my scripts, I read my scene, and I give my best. मैं हर फिल्म को अपना आखिरी फिल्म समझ के करता हूँ कि यार ये मेरी आखिरी फिल्म हो सकती है, so you have to give your 1000%. तो मैं उस तरीके से परफॉर्म करता हूँ. और जब मार्को रिलीज हुई थी, I remember I got some 28,000 messages on tweet and Insta कि यार एक सिंगल नेगेटिव मैसेज नहीं था, हालांकि इट वाज अ वेरी डार्क कैरेक्टर, मेरे जीवन का, मेरे करियर का सबसे डार्क कैरेक्टर था वो. जब मैं वो फिल्म शूट कर रहा था, माय वाइफ वाज 7 months प्रेग्नेंट, और स्पेशली एंड मेरे लिए बहुत टफ था वो फिल्म करना, बट स्टिल लाइक आई सेड कि आई टेक गॉड्स नेम एंड अपनी चेयर साइड में लेके बैठ जाता हूँ सीन प्रिपेयर करने से आधे घंटे पहले. आई डोंट अलाउ एनीबडी टू टच मी, आई डोंट अलाउ एनीबडी टू टॉक टू मी बिफोर माय सीन. सो दिस वाज नॉट डार्क, दैट वाज वेरी वायलेंट फिल्म, ये नहीं थी. सो लाइक आई सेड, एवरी फिल्म आई डू लास्ट फिल्म समझ के, तो मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं होता यार, सच में. बहुत चिल रहते हैं मलयालम में डायलॉग्स बोलने थे मुझे 2 दिन पहले से, वो डायलॉग्स थे क्योंकि मैं डायरेक्टर के पीछे पड़ पड़ी कि मुझे भेजो. इनके डायलॉग इनको उसी दिन मिले थे सुबह, और मलयालम में इट वाज काफी लंबा. मलयालम इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज बिकॉज इट्स अ टंग ट्विस्टर. तेलुगु में कुछ मैंने 60+ फिल्म, वो बहुत इजी है मेरे लिए तेलुगु, ऑन द स्पॉट डायलॉग. बट मलयालम मेरे लिए भी था, बट दिस इज माय 5th मूवी. सो और मैं अपना होमवर्क करके जाता हूँ यार, कि एक्टर अपना होमवर्क करके आता तो डायरेक्टर भी खुश होता, प्रोड्यूसर भी खुश होता, एक्टर भी खुश होते हैं कि भाई याद करके आ रहे तो इजी हो जाती चीज़ें यार. Hello, it was amazing premiere. And मेरा राज सर से एक सवाल है. सर जैसा कि बताया आपने कि रियल एलिफेंट्स के साथ शूट किया, सो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? व्हाट वाज द मतलब मोस्ट एग्जॉस्टेड डे? कोई ऐसा रहा हो कि कुछ इंसिडेंट हुआ हो सेट पे,
हट गया मतलब गन ये सब पका, मतलब वहाँ पे खड़ा रहना है मेरे को, डायरेक्टर ने बोल रहे हो सीधा आपके ऊपर आ जाएगा और मैं हिलना नहीं. So it's scary actually, but you know, once we are entered into the character, now I mean, I have believed that no master, टीचर मास्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, भाई कुछ नहीं होगा, आप हिलो मत. तो मेरे को भी चलो ठीक है, एक बार करे तो बार बार करने के लिए जरूरत नहीं रखते. चलो एक बार अच्छा शॉट दिया. So that was scary actually. Yeah. Though were trained elements, but still, you know, even I shot that killing. I played the dad character. आपने notice करा हो जो हाथी जिसको मारता था. I played that character. एक हाथ सिंह ऊपर नीचे हुआ. So I had a scene with I had a fight scene with elephant, but वो सीधा killing ले लिया गया. So it was even I was scared, little scared when he lifted me from here. That with teeth. So Amazing. Trained था, trained elephant से, but still यार कुछ भी हो सकता है. तो मैं तो भाई अपने महादेव का नाम लेके जाता था यार जब थाईलैंड में था. एंड एक्टर्स के लिए मतलब एक और सवाल है मेरा, सॉरी. एक्टर्स के लिए हमें लगता है कि हर सीन ही हम जान डाल देते हैं कि हर सीन की बात हो, बट इस फिल्म के रिलीज के बाद में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सीन जिसके बारे में मतलब लोग बात करें, या आपका पर्सनल कोई ऐसा सीन हो जिससे आप बहुत अटैच हो, मतलब इमोशनली कनेक्ट करते हो, कोई ऐसा सीन? मुझसे पूछो. हाँ मतलब मैं सबसे अगर छोटा छोटा आंसर मिल जाए तो. दोबारा आने दो क्वेश्चन मेरे पास. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी फिल्म एज एन एक्टर हर किसी को लगता है हर सीन में जान डालते हैं. एज एन एक्टर इस फिल्म का कोई भी एक ऐसा सीन जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो और ऑडियंस उसके बाद में मतलब रिलीजिंग के बाद बात करे, कुछ कोई भी ऐसा सीन. अगर मैं बात करूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन सीन जो ईडी की एंट्री होती है, बिकॉज वो बिग बिल्डअप एंड मेरा पार्ट का एंट्री था, वो शायद वो और आई थिंक थोड़ा सा और आप दे सकते थे उसको, तो और अच्छे से शूट हो सकता था थोड़ा सा. तो वो बिकॉज व्हेन यू हैव अ बिग बिल्डअप ऑन समवंस कैरेक्टर की यार उसको अपने कार्टर से नहीं निकालना चाहिए था, एंड इज वेरी वेरी पावरफुल. सो वो सीन था, मुझे देख के लगा थोड़ा सा कि हाँ वो और नाइसली शॉट हो सकता था, बिकॉज हम तीनों थे उस सीन में ना, है ना. वो थोड़ा सा बाकी आई लव द फिल्म. इमोशंस भी हैं एंड इट्स ऑफ कोर्स इट्स ए रेटेड बट ए फॉर वायलेंस, ए फॉर एक्शन, नॉट फॉर वायलेंस. सो ईडी अपने बाप के लिए लड़ रहा है, मारी अपनी एक कार्टल अपना जो फॉरेस्ट को राजा बन के बैठा है, कार्टल का राजा है, और एंट्री वापस आता है, एंट्री भी एक रीजन के साथ आ रहा है. सो इट्स गैंग लॉर्ड गैंगस्टर्स फिल्म. अमेजिंग, थैंक यू. हेलो हेलो हाय, मेरा नाम रदुल है. मेरा सवाल आप सभी लोगों से है. सबसे पहले कबीर सर आप बताइए मुझे कि आपने मार्को में आपने विलेन रोल प्ले किया था. वो फिल्म में आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ब्रूटल था. छोटे बच्चे के साथ भी सीन्स हैं और वो सारे बहुत ज़्यादा ब्रूटल है. वो फिल्म की यूएसपी थी कि वो उस टाइम की सबसे ज़्यादा वायलेंट गोली इंडियन फिल्म थी. इस फिल्म की क्या यूएसपी आपके अकॉर्डिंग? यार देखो, एक तो एक्शन हमारे सिनेमा वर्ल्ड से कभी बाहर नहीं गया. एक्शन हमेशा फॉर्ट है, और आजकल अगर आप रिसेंटली धुरंधर में रिलीज हुई है फिल्म, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है. एंड शरीफ भाई क्यूब्स एंटरटेनमेंट जिनका है, शरीफ भाई इज अ वेरी ग्रेट प्रोड्यूसर, एंड वो यार उनका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ फिल्म. अगर आपने जैसे फिल्म देख ली है अभी तक, मलयालम ऑडियंस, मलयालम सिनेमा जो बहुत लिमिटेड बजट में अच्छी चीज़ें बनाना जानता है बहुत अच्छे से, एंड वो भी इस फिल्म को देख के लगा. मार्को वाज अ वेरी लिमिटेड बजट, आई थिंक 20 CR के आसपास, एंड वी मेड अप टू 110 CR. सो तो ये बहुत क्वालिटी है कि यार आप छोटी में बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी दिखाते हो. दूसरा, लाइक मैम ने बोला था कि सेम क्वेश्चन था कि यार हमने इसको अपना ब्लड एंड स्वेट दिया इस फिल्म को, और वो दर्शाता भी है कि मेरी परफॉर्मेंस, पार्थ की परफॉर्मेंस, एंटनीज के करियर में, ये पेपे के करियर में बहुत डिफरेंट फिल्म है. इतना एक्शन उन्होंने कभी किया नहीं. एफर्ट, व्हाट एफर्ट ही वाज पुटिंग ऑन सेट, तो हम विटनेस थे उसके. चोट भी लगी हम लोगों को, मेरा तो मतलब क्लाइमेक्स में खून भी निकला था, जो नाइफ लग गया था मुझे. सो जब आप अपना खून दे देते हो यार पिक्चर, तो फिर रिलीज अच्छे से होगी, और फिर यार अप्रिशिएशन मिलता है. बताओ भाई. बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आइवरी की तस्करी सच में होती है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है. उस वर्ल्ड में अभी तक डिपिन किसी ने किया नहीं है. खासकर केरला में जाके, केरला और श्रीलंका के बीच का जो नेटवर्क है, वो वहाँ के कार्टेल को इस मूवी में दर्शाया जा रहा है. स्मगलिंग वर्ल्ड जो टस का ऐसा बना, ऐसी पिक्चर नहीं बनी अभी, नहीं बनी, और बहुत अच्छे से इस वर्ल्ड को दिखाया गया है किस तरीके से एलिफेंट्स को मारा जाता है. तो वो एक कनेक्शन जो है, और वो जो हंटर्स के बारे में बात की
आकर एलिफेंट को मार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आ रहा है जो होता है, और उनके साथ में क्या होता है वो भी हमने फिल्म में देखा, एंड कार्टल्स किस तरीके से इससे पैसा कमाते हैं वो भी हमने देखा, और एलिफेंट्स इसकी वजह से कितना सफर करते हैं वो भी हमने देखा. तो दैट इज आई थिंक द यूएसपी एंड डिफरेंट थिंग इन दिस. मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, आपकी पिछली फिल्म किल जो थी उसमें आपका बड़ा कमाल का काम था, और उसका एक्शन और इसका एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों एक्शन फिल्म. क्या डिफरेंट था आपके अप्रोच में टुवर्ड्स वाइल फिल्मिंग द फिल्म? जी बहुत डिफरेंस है किल जैसी फिल्म में, और इधर किल वाज मोर फास्ट पेस्ड, रॉ एंड रस्टिक एक्शन, जो कि बिना कोई पॉजेस के, आई थिंक हम लोगों के फाइट सीक्वेंसेस 30-40-50 सेकंड के सीक्वेंसेस हम विदाउट कट कर रहे थे, 2-2 3-3 कैमरा लगे होते थे, बॉडी क्रैम्ड स्पेस में था. सो उसका एक्शन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड हियर. जैसे कि मैंने बात की, कैरेक्टर भी दोनों बहुत अलग है, ठीक है, उसका इमोशनली ड्राइविंग पॉइंट बहुत अलग था, यहाँ पे उसका पैसा और ईगो है, वहाँ पे उसका उनके डैड के कैरेक्टर के. तो यहाँ पे जो एक्शन हमने परफॉर्म किया, आई थिंक ये ज़्यादा स्टाइल ओरिएंटेड था, एंड सबका अपना अपना एक तरीका होता है एक्शन को दिखाने का. मेरे लिए किल में बहुत डिफरेंट था, और यहाँ पर आकर आई थिंक कुछ नया ही सीखने मिला, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो सीखा था वो मुझे बहुत पसंद आया. उसके बाद अब जो मैंने यहाँ पे सीखा है, आई थिंक ये दोनों मिला के आगे की फिल्मों में काफ़ी हेल्प होगी, जो हो भी रही है, जो जो फिल्म अभी फ्लोर पे है. I think you asked the USP question to all of them, right? So, Hariji and Raji, if you can also answer that part. I'm just I was just pointing at the USP is elephants, which is what Parth also tells. I love your outfit, by the way. Thank you. Yeah, so the USP is elephants, and with elephants, movies have not done the wrong thing. So I think we are all waiting for people to see, and you all to tell about the movie. Yeah. Hathi and Sabka Sathi, that's usually. Hathi. Media plays a very important role here. Yeah, your point of view regarding the USP. हमारा साथी साथ दे दो, पिक्चर हिट कर लो बस. आपको क्या लगता है हिंदी ऑडियंसेस को क्या सबसे ज्यादा पसंद आएगा इस फिल्म? See, it's all about action, this film. So they focus only on action, action देने के लिए. So शायद वो action films नॉर्थ इंडियंस को अच्छा लगता हो. यार हिंदी ऑडियंस wants to watch a good Hindi film these days. चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, आप उनकी प्लेट में अच्छा खाना परोसोगे तभी वो थिएटर तक चल के आएंगे. कोई 600 रुपये 700 रुपये नहीं लगाने वाला है. मार्को 87 थिएटर्स पर रिलीज हुई थी, एंड देन एक हफ्ते में 1500 थिएटर्स. तो ये तो बहुत अच्छे नंबर्स पर रिलीज हो रही है फिल्म. सो अच्छा खाना दोगे तो आप पब्लिक आकर खाएंगे. और मार्को केरला से फिल्म आई थी, जो कि हिंदी में जिसके थिएटर्स बड़े थे, और किल बॉलीवुड से फिल्म आई थी जिसके केरला में थिएटर बड़े थे. We were shooting on Marco that time. ऐसा नहीं है कि साउथ का सिनेमा यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ का भी सिनेमा वहाँ Everybody देखा wants जा रहा to है. watch a good film यार these days. बाउंड्रीज धीरे धीरे करके कम तो हो रही है. Hi, my name is Farhad Dalal. I'm from Popcorn Reviews. My question, मेरा सवाल है आप चारों से कि आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का पहले तो ब्रीफ क्या था, और दूसरा सवाल ये है कि आई एम अज्यूमिंग कि आप चारों ही आर नॉट वेल वर्स्ड विद द मलयालम लैंग्वेज, क्योंकि वो ओरिजिनल में शूट हुआ था, आपके लिए नई लैंग्वेज थी. तो हर एक सीन में आप कैसे इंश्योर करते हैं एज एन एक्टर कि इमोशन लैंड हो, अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल लैंग्वेज, कि यू हैव टू माउथ योर लाइंस इन मलयालम बट द इमोशंस हैव टू बी इंटैक्ट. सो ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? चारों से सवाल. पहली बार ब्रीफ देने से डायरेक्टर ने बोला है कि इसमें ज़्यादा डायलॉग्स नहीं रहेगा, आप लोग देख सकते हो. बेसिकली द कैरेक्टर मारी कम्स फ्रॉम मदुरई, तमिलनाडु. सो मलयालम बोलने की ज़रूरत नहीं है, और 3-4 डायलॉग ही है तो प्रॉब्लम नहीं है. सो वी लर्न ऑन द सेट इटसेल्फ एंड वी डिलीवर्ड. सो दैट इज यार मैं Thank you. So SP Nelson obviously वो टेनी डिस्ट्रिक्ट का SP था. मुझे जब कॉल आके पॉल सर ने बोला कि ये तमिल भी बात करेगा और मलयालम भी बोलेगा, एंड हाफ 50-50 था. एंड आई एम प्लेइंग द ब्रदर इन लॉ ऑफ sorry, he is my brother in law of my character. So Malayalam was not
very similar. Slightly tongue twisters, like they said, it's tongue twister. So we managed it. It was neatly brief हमें अच्छा मिला था पहले. मंगलिश में हमें पहले दे दिया डायलॉग्स एंड उसका मीनिंग्स हमने अपने लैंग्वेज में लिख लिया. एंड देन उसको एक बार दो तीन बार हमने अंदर कैरावन के अंदर ही प्रैक्टिस करके ही हम जाते हैं when we go to the set. Yeah, so we were very well prepared. Yeah, I want to give credit to my first movie director Jill, which was released in 2015. Opposite Gopi Chand, Prabhas was the producer of that film, Prabhas sir. And मैंने आज तक मतलब इतने 10 साल के करियर में कभी प्रॉम्प्ट नहीं लिया है और ना मैं हिंदी बोलता ना मैं ABCD बोलता. So credit goes to my first movie director Radha sir because उन्होंने 15 दिन पहले मुझे स्क्रिप्ट दी थी. I had some 22 scenes and he was like कि कबीर you have to learn your own dialogues. जो मेरी पहली फिल्म थी, जो मेरा वो एफर्ट था वो आज मेरे लिए इजी है चीज़ें करने में. अगर मैं उस टाइम अपने मन से चोरी कर लेता यार कि अरे चलना मैं हिंदी बोल देता हूँ या बैकड्रॉप या कोर्स ले लेता हूँ. बट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी एंड कि यू हैव टू लर्न. यू वांट टू एसोसिएट डायरेक्टर्स विद यू. यू वांट वॉइस नोट्स. यू वांट इंग्लिश में डायलॉग चाहिए. सो जो भी तुझे चाहिए तो ले ले. बट आई वांट यू टू से योर ओन डायलॉग्स ऑन द सेट. सो 15 दिन में मैंने मेरे कुछ 22 सीन थे पहली मूवी में. आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज उससे मुझे आज इतनी हेल्प मिली है कि मुझे डायलॉग्स मिलते हैं तो मैं वही अपना प्रोसेस कैरी करता हूँ. सो जब जिल मूवी रिलीज हुई थी पहली फिल्म 27 मार्च 2015 को, तो मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की थी उस टाइम. और आज भी वही प्रोसेस करता हूँ कि जैसे एक दिन पहले आई आस्क फॉर दे सेंड मी द वॉइस नोट्स. मैं सुनता हूँ उनको, मलयालम हो चाहे तमिल हो. सो आई लिसन एक दिन पहले सो दैट मैं उस स्लैंग पकड़ सकूं एंड उनको लिख कर. जैसे हम बच्चे थे, हमारे फादर साहब बोलते थे कि आप लिख कर देखो. आप जब लिखते तो वो मेमोरी बन जाती, वो याद हो जाता. तो मैं आज भी इतनी फिल्में करने के बावजूद भी मैं एक दिन पहले डायलॉग्स मंगाता हूँ अपने, सुनता हूँ, लिखता हूँ, याद करता हूँ सो दैट अगले दिन वो चीज़ें ईजी हो. और ये समाउ टाइम भी सेव करता है. दूसरे एक्टर को मुझे ज़्यादा टेक नहीं देने पड़ते. मेरा को एक्टर इज़ वेरी हैप्पी, डायरेक्टर इज़ वेरी हैप्पी कि मतलब ही कम्स विद फुल होमवर्क करके आता है. So this is how my process is कि वॉइस नोट सुनना, मंगलिश में या टंगलिश में या तमिल लैंग्वेज में डायलॉग आ जाते हैं. सो मैंने बहुत रेयर मैंने प्रॉम्प्ट लिए होंगे व्हेन यू हैव सम 20 लाइंस. अदरवाइज मैं याद, मुझे आज भी अपनी पहली फिल्म का डायलॉग याद है. जो पहली फिल्म का जिस टाइम मैं नर्वस था, वीरू नन्नु मौसम चेसाड़ू अन्न बात करना आश्चार मुकुगा उंडी वाड़ी मोगा मना. उस दिन मैं नर्वस था. जब पहले दिन का शॉट जिल मूवी का फर्स्ट डे, 2 cameras close up and my director came to me and like, what happened? Are you nervous? But उस टाइम मैं फंबल कर रहा था. बट आज वीडियो नन्नु मौसम से साड़ो अन्ना बात करना आश्चर्य मुकुगा उंडी वाड़ी मोगा. मुझे तो लगता है सिनेमा हैज नो लैंग्वेज बैरियर्स these days. आप मेहनत करते हो, कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, कोई ऐसी बात. थैंक यू. हाय फराज. सो हमको एक ट्रेनर दिया जाता है जो कि हमारे साथ होता है प्रोनाउंसिएशंस पे. खैर क्योंकि डब होता है एंड में तो प्रोनाउंसिएशंस का इतना नहीं होता, लेकिन द वर्ड्स शुड कम आउट. तो बहुत लोगों को ये डाउट भी है कि हम जाने के बाद वहाँ पर ABCD बोलते हैं या 1 2 3 4 बोलते हैं. ऐसा बहुत तरीके से. हाँ, बट ऐसा मैंने तो अभी ये मेरी 4th एक्चुअली फिल्म है जो मैं साउथ इंडिया में कर रहा हूँ. इनका डायलॉग था मरण पेटा अप्पानो विंडियुला वावी मोगंडे प्रार्थना എന്നാണ് അറിയാമോ മാറി അപ്പ നഗരായി ചാത എന്ത് അത് നടത്തുക അത് നടത്തും. तो अभी ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बट हम लोग एक्चुअली मलयालम में लाइंस लर्न करते थे. एंड इमोशन की जो आपने बात कही, तो हर वर्ड के नीचे उसका मीनिंग होता है. उसके अलावा पूरे लाइन का मीनिंग और हर एक्चुअली मलयालम में जो इसके डायलॉग्स है मूवी के, दे आर वेरी पॉइंट टू पॉइंट. एनीबडी इज नॉट स्पीकिंग टू मच. जितने भी लाइंस दिए हैं कम है और उसका एकदम क्लियर आउट मीनिंग है. तो मलयालम में इट इज वेरी मतलब उसका जो सेटअप है इट्स थोड़ा सा डिफरेंट. इट्स गुड. तो उन्होंने हमको हर एक वर्ड का मीनिंग और इमोशन साथ में लिख के दिया था. साथ में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठते थे, एसोसिएट डायरेक्टर थे एक्चुअली. वो बैठते थे और वो हमसे प्रैक्टिस करवाते थे. To mention Rajesh sir, Dibil, Joby sir, all 3 helped us. Can we move to the next question, please? I have a question for Parth. Sorry. कहाँ पे आप? Oh, अच्छा. Like my. So in fact, I have 2 questions for Parth and Rajpur. So that snake thing was very frightening.
also like visually, and after that, like your face as well. So how was that? Thank you for asking that question actually. So जब मेरी director से बात हुई थी इस character को लेके, his mind was like जो पीछे तरीका होता है drugs लेने के बाद इंसान is like more this and that, हाँ थोड़ा zone उसका उस तरीके से दिखाया जाता है या होता है. But mine और उनका ये discussion हुआ था खासकर कि because he is educated, Robbie is educated और वो काफी समय से कर रहा है, जो भी काफी समय से कोई ऐसी चीज करता है वो अक्सर उसका आदी हो जाता है, तो ही इज एबल टू हैंडल दैट. तो वो उसके बाद के जो शॉट्स है या उसके बाद का जो मेरा डिमीनर है वो बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल लूज नहीं करता है. ही इज एंग्री बट ही इज नॉट लूजिंग कंट्रोल. वो एक चीज दिमाग में हमेशा रखी थी परफॉर्मेंस के वक्त कि ही विल नॉट फ्लो आउट या बात इस तरीके से करा. थैंक यू फॉर आस्किंग. It was very nice. And I have just one more thing for Raj. You look very frightening on screen, and like but the way you walked and the way even now when you speak, now when you will speak, you're like it's very it's simple, and its contrast is like the gap is huge. Yeah. So how you cross that gap? I think that's what made me actor. तो वो बाहर में ऐसा नहीं रह सकता हूँ यार. मतलब पहले से नेगेटिव रोल्स मिल रहे तो लोग भी ऐसे देख रहे हैं. So very soon I think you guys witness me in a different way. The other side of my इनकी बातें सुन के लगता नहीं है पुष्पा वाला है. मतलब खतरनाक. Villains are very opposite in real life. अगर आप अमरीश पुरी साहब को देख लो, कादर खान साहब को देख लो, प्राण सर को देख लो, या प्रकाश राज सर ले लो, या और भी बहुत villains हैं. He actually gives very pokey vibes, ना? वो जो कहावत है today's word pokey, he actually gives that pokey vibes, ना? Very Pokey Raj, Pokey Raj. Pokey Raj. राज भाई मेरा सवाल आपसे है. You want to say something and then we'll take the question up? No, please go ahead. So सर जैसे इन्होंने कहा कि बहुत ही सिंपल दिखते हो आप. पुष्पा में भी हमने देखा बहुत ही अलग तरह का एक्शन था. इस फिल्म में भी बहुत ही अलग तरह का एक्शन है आपका. थोड़ा सा बताइए कितना चैलेंजिंग होता है ड्यूरिंग एक्शन, क्या क्या प्रिपरेशन रहती है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें आप. पुष्पा के बारे में तो बहुत डिफिकल्ट है. दैट इज माय फर्स्ट फिल्म, बट यू नो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन Sukumar sir gave me because it's because of COVID we got time for 6 months after selecting to the film. So he injected me a character like anything. The play thing is that is not pre-planned. But after coming to the sets, सर ने पूछा आप मुझसे ब्लेड निकाल सकते हो क्या. मैं अगर तो काम नहीं है मेरा, बट मुझे लगा ये कैरेक्टर के लिए मतलब वो थोड़ा ज़रूर है. मुझे भी वो यूनिक काइंड ऑफ ये देगा बोल के मैंने थोड़ा टाइम दे दो सर, मैं प्रैक्टिस करके बताता हूँ. तो 2-3 दिन में मैंने प्रैक्टिस किया और अच्छा वर्क किया फिर फिल्म के लिए भी. और कमिंग टू दिस फिल्म ना, दिस इज I really want to play the kind of subtle performance and intense performance kind of roles. That is different completely. वो always edge में रहता है. जीजा जी कुछ बोला तो किसी को मारने के लिए तैयार रहता है. मतलब he wants like जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा. But this is not like that. So I really like this character. Thank you so much. I think we'll just take one last question. This would be the last question for the conference. My name is Devan. First of all, congratulations for the talent. My question is, film is full of action, drama, intense. Everything was like masala. So, how was the involvement behind the camera? Like, was there any funny incident happened behind the camera, or just like film, it was all intense? It was fun. वो intense रहेंगे तो बात क्या करेंगे. मतलब of course वो जितनी मस्ती से काम होता है तो चीजें बढ़िया निकलती हैं. And we had a see, like I said, villains they are very damn. मतलब we are very opposite in real life. Fahd bhai, Raj, Harish bhai, and even Pepe. Sunil sir नहीं है. We are missing Sunil sir and Pepe. वो तो और opposite आदमी है real life में. So it was fun यार. It was fun working with everybody. अच्छा माहौल था सेट के ऊपर. प्रोड्यूसर हमारे बहुत अच्छे हैं सर, डायरेक्टर, तो इसलिए
तो नहीं है अपना वो एक्सीडेंट वाला बता दो यार. हाँ चलेगा सर चलेगा. बताओ यार. I was shocked. You called me and बता दो सर. मैं और एंटनी हम लोगों का जो एक्शन सीक्वेंस है इंटरवल के पहले वाला उसके बाद हम लोग कार में जा रहे थे वैगमॉन में शूट था बहुत ही ब्यूटीफुल जगह और हिल से नीचे जाते हुए हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ और ओवरटर्न हो गई. लकीली हम लोग हिल में नहीं गए. हमने सीट बेल्ट पहन रखा था. मेरे को शायद नींद आ गई थी. गाड़ी पलट गई लेकिन हम दोनों बच के बाहर निकले. तो फनी तो नहीं था लेकिन बहुत स्कैरी था. and next day we spoke and you told me मैंने कहा यार तो सही में क्या हुआ. भाई ये मुझे बोल के नहीं गए थे कि यार देख शादी के बाद अच्छा शादी से पहले की बात है 4-5 दिन चीज में. शादी के बाद ना ऐसा कुछ होता है जस्ट पहले कुछ होता है. Don't get out from your house, don't shoot and then he got in. कुछ पैर में इंजरी हुई थी and I like तो अभी पैर में इंजरी भी हुई उसमें एंड वो एक्सीडेंट से तो एक नेक भी थोड़ा सा इंजरी वहाँ आया था. नेक ये हो गया तो सारे दुख दर्द इसको ही मिले इस फिल्म में. You know all I can just to tell you मसाला कुक करने से अच्छा होता है. yes that's what we are saying. मसाला कुक किया कि आपने मसाला के अंदर जाके आपने काम किया. That is what it is. आप लोगों का comedy is very dangerous, and not everybody can relate with that kind of comedy. But then thank you so much to all our friends from the media for all the wonderful questions. Thank you so much for watching the movie over here and appreciating it. Thank you very much sir. But we want to releasing tomorrow, so please give your love.